Hi guys, welcome back to the LSIS YouTube channel. In the last lectures, we discussed about demand and law of demand, and today we'll study elasticity of demand. Before starting, if you haven't subscribed the channel, kindly do so. Elasticity of demand. Here we'll study definition, types of elasticity of demand, price elasticity of demand, types of price elasticity, income elasticity of demand, cross elasticity of demand, advertising elasticity of demand. Definition of elasticity of demand. Elasticity of demand measures the degree of responsiveness of the quantity demanded of a good to change in one of the variable on which demand depends. What do we mean by elastic? Elastic is something it changes its position, जो अपनी शेप चेंज कर ले, जो खिंच जाए और वापस से अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए, उसे हम इलास्टिक कहते हैं. सेम डिमांड कितनी खिंच रही है या कितनी कम हो रही है के मेजरमेंट को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. डिमांड के जो वेरिएबल्स होते हैं, उसके जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उनकी चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरह वो रिस्पॉन्स करती है, इसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, it is the percentage change in quantity demanded divided by percentage change of one of the variable on which demand depends. There are four types of elasticity of demand. First, price elasticity of demand, income elasticity of demand, cross elasticity of demand, advertising elasticity of demand. First, price elasticity of demand. The degree of responsiveness of quantity demanded to a change in price is price elasticity of demand. किस तरह एक कमोडिटी की क्वांटिटी की डिमांड रिस्पॉन्स करती है उसके खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से, उसे हम elasticity of demand कहते हैं. This is the formula to measure price elasticity of demand. Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in its own price, or Q1 minus Q divided by Q into 100 upon P1 minus P divided by P into 100. Here Q1 is the new price after the change and Q is the old price, and we have to find the difference. And similarly, P1 is the new price and P is the old price. Types of price elasticity of demand. There are 5 types of price elasticity of demand. Perfectly elastic demand, relative elastic demand, demand with unit elasticity, relatively inelastic demand, perfectly inelastic demand. Perfectly elastic demand. When the quantity demanded changes even when there is no change in its prices. जब प्राइस के बिना चेंज हुए भी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कर जाती है, उसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं. इस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इनफाइनाइट बिकॉज प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी डिमांड में इनफाइनाइट चेंजेस आ रहे हैं. जो हमारा ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के. है प्राइस इज कांस्टेंट and the quantity demanded changes continuously. Next is relative elasticity of demand, or more than unit elastic. It is a type of price elasticity where a reduction in price leads to more than proportionate change in demand. जहाँ पे प्राइस की चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा अफेक्ट आता है एज कम्पेयर टू द चेंज इन प्राइस. यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी लेस देन इन्फिनिटी होगी बट ग्रेटर देन 1 होगी, और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा. डिमांड विद यूनिट इलास्टिसिटी. When a given proportionate change in prices causes an equal proportionate change in quantity demanded is called unit elasticity. जब जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतनी ही हमारी अगर क्वांटिटी चेंज हो रही है, दोनों इक्वल
मात्रा में चेंज हो रहे हैं तो उसे हम यूनिट इलास्टिसिटी कहेंगे। यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी 1 होगा और जो हमारा कर्व होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। मीन्स जो इनके रेक्टेंगल्स के एरिया होंगे सारे वो सेम होंगे। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड और लेस देन यूनिट इलास्टिक। It is a type of price elasticity where a decline in price leads to less than proportionate increase in demand. जो अगर हमारा प्राइस चेंज हो रहा है तो उसके प्रपोर्शन में डिमांड कम इंक्रीज होगी। यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 से कम होती है और 0 से ज़्यादा होती है। इन इलास्टिक है तो वो थोड़ा रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब वो थोड़ा कम खिंचेगा। प्राइस जितना बढ़ रहा है उसके प्रपोर्शन में डिमांड कम चेंज होगी। इसी वजह से जो हमारा कर्व होगा वो थोड़ा स्टीप होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मीन्स ज़ीरो इलास्टिसिटी, जो बिल्कुल भी चेंज ना हो, वो हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक। चाहे प्राइस में इनफाइनाइट चेंजेस आए लेकिन उस पर क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो। यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी 0 रहती है। व्हेन अ चेंज इन प्राइस causes no change in quantity demanded, this is perfectly inelastic demand। यहाँ पे कर्व वर्टिकल होता है यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमारी क्वांटिटी कांस्टेंट है और प्राइस जो है वो वरी कर रहा है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है इनकम की चेंज होने की वजह से, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: zero income elasticity, negative income elasticity and positive income elasticity. Income elasticity of demand, a degree of responsiveness of quantity demanded to a change in income is income elasticity of demand. इनकम के चेंज होने से डिमांड किस तरह रिएक्ट करती है, किस तरह रिस्पॉन्स करती है, उसकी मेजरमेंट को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी इज व्हेन चेंज इन इनकम हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। जब इनकम के चेंज होने पर भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारा कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। Next is negative income elasticity. An increase in income may lead to a reduction in the quantity demanded. और मेनली ये इंफीरियर गुड्स में होता है, जब इनकम के बढ़ने से भी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है तब हमारी इलास्टिसिटी निगेटिव हो जाती है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, when an increase in income may lead to increase in quantity demanded। ये हमारे नॉर्मल गुड्स में होता है, जब इनकम के बढ़ने से कंज्यूमर उस प्रोडक्ट का क्वांटिटी इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द proportionate change in quantity demanded of a particular commodity in response to a change in the price of another related commodity। हमने 2 टाइप के रिलेटेड गुड्स पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब इन रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस में चेंजेस आते हैं तो डिमांड किस तरह रिस्पॉन्स करती है, इसके प्रोपोर्शन को हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ये भी हमारी 2 टाइप की होती हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव होती है, और जब
हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो एक बिजनेस, एक कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट में जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहा है उसके रिस्पॉन्स में डिमांड कैसा रिएक्ट कर रही है, उसे हम एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी का कर्व कुछ इस तरह होता है। पहले हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करती है बट आफ्टर सम टाइम वो कांस्टेंट हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।